اور میرے ساتھ مل کر عہد عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے ہم زبور کی کتاب، اس کے 91 زبور کو خدا کے کلام میں سے مل کر بلند آواز کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ زبور 91 نکالنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، اور اس کے پہلے باب کی ہم چوتھی آیات مقدسہ تک مل کر اس کو تلاوت کریں گے۔ آئیے زوردار آواز میں پڑھیے گا۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈال اور سپر ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے پاک سے برکت۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ بیٹھے تشریف رکھیے گا۔ آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے مہلک وبا۔ کیا عنوان ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، ایک آواز ہو گئی ہے۔ مہلک وبا کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہم نے خدا کے کلام میں سے زبور 91 اور اس کی تیسری آیت کے ہم نے تیسری آیت میں کیا لکھا؟ کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ کیا کرے گا؟ کس سے؟ ذرا بلند آواز سے، کس سے؟ کیونکہ آپ روحانی کلیسیاں اور آپ کا جوش کم نہیں ہونا چاہیے۔ مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ کیا کرے گا؟ آمین۔ آج ہم ابھی جو میڈیا ہے ہمارا، ایک کو کام کرتے ہیں، اس میں بڑی ایک وبا کی خبر پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس۔ اسی طرح چند مہینے پہلے ہمارا ملک، پیارا ملک جو ہے، وہ بھی مختلف وباؤں کی زد میں رہا۔ آئیں ذرا میننگز میں نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مہلک کا مطلب ہے ہلاک کرنے والی۔ کیا جی؟ مارنے والی۔ مہلک ہلاک کرنے والی، مارنے والی۔ اب وبا کا کیا مطلب ہے؟ بولے بولے بولو گے تو پھر دوسرے گا نا کام۔ وبا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا نوٹ کر لیا، آج وبا کے میننگ بھی نوٹ کر رہے، جو نوٹ کر رہے ہیں۔ وبا کا مطلب ہے وہ بیماری جو بہت لوگوں پر، ذرا دھیان سے، وہ بیماری جو بہت لوگوں پر ایک ہی وقت میں اثر کرے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہیں بھی دیکھیں، ایک ٹائم کے اندر ہزاروں، 100 کی تعداد کے اندر پورے شہر، ملک جو ہے اس کی زد میں آ جائے، وہ وبا ہوتی ہے۔ ایک ٹائم میں ہر بندہ اس سے متاثر ہو جائے، وہ وبا ہوتی ہے۔ پھر ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، وہ بیماری جو بہت سے لوگوں پر ایک ہی وقت میں اثر کرے، وہ وبا کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اب بیماری اور روگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بیماری وہ ہوتی ہے جس کا علاج ہو، روگ وہ ہوتا ہے جو بندہ میڈیسن کھاتا رہے پر شفا نہ پا سکے، ہیل نہ ہو سکے، وہ اس کو روگ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ ہے۔ وبا کے اندر وہ بیماری جو ایک ٹائم میں، ایک وقت میں شہر، ملک، قصبوں کو کیا کر لے، اپنی لپیٹ میں لے لے، وہ وبا کہلاتی ہے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ تجھے مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ کیا کرے گا؟ مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ آج اس پیغام میں ہم یہ زیادہ ویسے بھرتواری تلیبی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج میں زیادہ ریفرنس کوٹ کروں گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں
वबा के बारे में बड़ी तफसील से खुदा के कलाम में से आज हम बात करने वाले हैं। याद रखिए मुल्क के अंदर जो बिगड़ते हुए हालात हैं, अभी मैंने पहले बात की कि अगर आप टीवी चैनल्स को लगाएं तो एक बड़ी बेयकीनी की हालत ने दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है, बेइत्मीनानी की हालत ने दुनिया पर कब्जा किया हुआ है। और कोरोना वायरस जो है इसके बारे में मैंने रिसर्च थोड़ा किया। 1960 में पहली दफ़ा ये इसका एक मरीज सामने आया। किसमें? 1960 में। इसके बाद आज तक इसकी जो इकसाम है वो 13 इकसाम जो है वो दरियाफ्त हुई, जिनमें 7 इकसाम इंसानों के लिए, इंसानी जिस्म के लिए नहायत ख़तरनाक है। अब खुदा ने जो वादा किया है यहाँ पर इस बात के लिए कि मैं तुझे क्या करूँगा, वबा से, मुहलक वबा से छिड़ाऊंगा, यानी वो वबा जो लाखों कस्बों को, शहरों को लपेट में ले लेती है, पर मैं तुझे क्या करूँगा, उसमें से छिड़ाऊंगा। मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे रहाई करूँगा, मैं तुझे उसमें से डिलीवरेंस दूंगा, रहाई का काम तेरी ज़िंदगी में करूँगा। याद रखिए ये वबा जो है बाइबल मुकद्दस में आज बहुत सी वबाएँ हैं, लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि बाइबल मुकद्दस वबाओं का जिक्र करती है। क्या करती है? चंद हवाले नोट कर लीजिएगा, पढ़ नहीं सकते हम क्योंकि वक्त नहीं है कि हम पढ़ें, लेकिन मैं बताऊंगा कि वबाएँ पुराने अहद के अंदर भी वबाएँ आई। गिनती की किताब 11वें बाब की 33 आयत में वबा का आपको जिक्र मिलेगा कि जहाँ पर वबा खुदा ने भेजा और वबा से बहुत से लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। गिनती 11:33 नोट कर लीजिएगा। जिनके पास डायरियाँ और जिनके पास नहीं है वो ज़रूर मेरा मुंह देखिएगा क्योंकि लिखने वाला काम ज़्यादा है। 11:33। फिर गिनती की किताब उसकी 14 बाब की 37 आयत में भी आपको वबा का जिक्र मिलेगा, जिसमें बहुत सी लोग जो है इस वबा की जद में आए। गिनती 16वें बाब के अंदर उसकी, चलें पढ़ लीजिएगा, चंद हवाले जात पढ़ लें ताकि जो लोग गिनती 14:37 पढ़ लें। जरा जल्दी से, फिर आपने थोड़ी जल्दी करना पड़ेगी आपको क्योंकि मैं चाहता हूँ। जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी, खुदावन के सामने वबा से मर गए। खुदावन के सामने क्या हो गए? जिन्होंने क्या दी थी? मुल्क की। अब आपको वाकया होगा जिसूस भेजे गए, सारा वाकया आगे गिनती की किताब के अंदर गिनती 25 बाब की 8वीं और 9वीं आयत जरा पढ़ लीजिए। गिनती की किताब 25 बाब 8 से 9 आयत के अंदर। उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और 25 बाब की 9 पढ़िएगा। उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और उस इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इस्राएल में से वबा जाती रही। तब बनी इस्राएल में से वबा क्या करती रही? जाती रही। फिर दूसरा शमूएल उसका 26 बाब 13 से 15 आयत नोट कर लीजिएगा। इस वबा में 70,000 आदमी मारे गए। क्या हुए? अब जब वबा आई, हजारों की तादाद में जो लोग थे वो मारे गए इन वबाओं में। कैसे हुआ? 70,000 हजारों की तादाद में। यहाँ चंद वबाओं के बारे में मैंने खुदा के कलाम में से आपके सामने हवाला जात रखे। अब बाइबल मुकद्दस में याद रखिए ये वबाएं क्यों आती हैं। आज मैं अहम सवाल बयान करने लगा, ये वबाओं की आने की वजूहात क्या हैं, क्यों ये वबाएं दुनिया पर आती हैं और हमारा मुल्क और दुनिया जो है इन वबाओं के बारे में नहायत बेयकीनी की हालत के अंदर जब चली जाती है। आज इस तरफ पॉइंट को खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि खुदा वबाएं क्यों भेजता है। क्या देखेंगे? जरा बोलिए, खुदा वबाएं क्यों भेजता है? क्यों आती है दुनिया में वबाएं? सवाल है ना। इसका जवाब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये भी पॉइंट से लिखने वाला काम होगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, जब खुदा के कलाम की नाफरमानी होती है। बोलिए, वबाएं क्यों आती हैं? एक बात होके, जब खुदा के कलाम की नाफरमानी होती है। क्योंकि याद रखिए खुदा ने अहबार की किताब के अंदर उसके 11वें बाब के अंदर बताया था न पाक क्या है और पाक क्या है। क्या बताया था?
خدا نے جن کو کھانے سے منع کیا ہے کہ اگر ان کو کھائے گا تو اس کا رزلٹ خطرناک ہوگا، پھر کئی کورونا بنیں گے۔ یاد رکھیے اس بات کو، خدا نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جب نافرمانی ہوگی، اخبار کی کتاب کے اس کے 11ویں باب کے اندر لمبی ڈیٹیل ہے، ایک لمبی لسٹ ہے آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس جانور کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا، کون سی مخلوقات جو خدا نے آبی مخلوقات کے بارے میں، زمینی مخلوقات کے بارے میں، ہوائی مخلوقات کے بارے میں خدا نے واضح طور پر بتایا کن کو تم کھا سکتے اور کن کو تم نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی شخص اس خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ ضرور اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ کئی ایسی وباؤں کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ لکھیے گا، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، پہلا پوائنٹ بھی کیا تھا، جب ہم خدا کی، اور بائبل مقدس میں ہمیں خروج کی کتاب اس کے 5 باب کی 3 آیت کے اندر، خروج 19 باب کے خروج 5:3 نوٹ کیجئے گا، خروج 9:15 نوٹ کر لیجئے گا، خروج 5:3 اور خروج 9:15 کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ خدا نے ملک مصر پر وبائیں بھیجی جب اس نے خدا کی بات کو نہ مانا۔ خدا کیا کہتا تھا، جانے دے لوگوں کو، وہ کیا کرے میری، پر فرعون کیا کرتا، اپنے دل کو سخت کر لیتا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا، خدا ملک پر وبائیں بھیجتا، ملک وباؤں کی زد میں آ جاتا، ایک وقت میں کئی پورا ملک جو ہے ان وباؤں سے متاثر ہوتا، فائنینشلی طور پر کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ملک جو ان کی زد کے اندر آتا۔ دوسرا پوائنٹ لکھی، عہد شکنی کی وجہ سے خدا وباؤں کو بھیجتا ہے۔ اس کی وجہ سے، پہلا میں نے کیا بتایا، نافرمانی کی وجہ سے۔ نافرمانی کے لیے میں نے 2 باتیں بتائی، پاک ناپاک میں تمیز کرنا اور خدا کی بات کو نہ ماننا وباؤں کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ لکھیے، عہد شکنی، جہاں عہد شکنی ہوگی، ہم نے جمعرات کو بھی عہد شکنی کے اوپر بات کی، اخبار کی کتاب 26 باب کی 26 آیت نوٹ کر لیجئے گا، جب لوگوں نے عہد شکنی کی خدا نے وبا کو بھیجا اور پھر لوگ مارے گئے، اخبار 26:26 کے اندر۔ تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب اس کی 20 اور 21 آیت کے اندر، جہاں خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیا نہیں ہوگا، ذرا بولیے، جہاں خدا کے کلام پر وہاں کیا ہوگا، وبائیں پھیلیں گی۔ یاد رکھیے اس بات کو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے جہاں خدا کے کلام کو عمل نہیں کیا جائے گا، جہاں خدا کے کلام کو عزت نہیں دی جائے گی، اور جہاں پر کلام کو عملی طور پر نہیں اپنایا جائے گا، پھر خدا جو ہے وہ بائیں بھیجے گا، اور وہ بائیں جو ہے، استثنا کی کتاب 28 باب کی 20 اور 21 آیت میں خدا نے کہا، اگر تم عمل نہیں کرو گے، جافرشانی سے بات نہیں سنو گے، پھر میں کیا کروں گا، میں وہ بائیں بھیجوں گا، اور وہ بائیں جو ہے وہ ملک کے اندر، خاندانوں کے اندر تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی۔ اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، بردشتگی کے سبب سے وہ بائیں خدا بھیجتا ہے۔ کس کے سبب سے؟ جہاں لوگ، بردشتگی کا مطلب ہے جہاں لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور پہلی سی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ توڑ لیتے ہیں، اچھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس دوڑ سے جب وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ بردشتگی ہے، اپنے نشانے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے ایم سے ہٹ جب جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر خدا جو ہے برگشتہ لوگوں کے ملکوں پر کیا کرتا ہے، وباؤں کو بھیجتا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 17 آیت نوٹ کر لیجئے گا، یشوع 22:17 نوٹ کر لیجئے گا۔ اس میں آپ کو ملے گا کہ خدا جو ہے وہ برگشتگی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وبا بھیجتا ہے۔ اگلی بات، گمراہی کی وجہ سے وبا آتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بولیے، کس کی وجہ سے؟ یہ پوائنٹس یاد رکھ لیجئے گا، چند، اگر زیادہ تو نہیں، چند ضرور رکھیے گا یاد۔ گمراہی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ یرمیہ 14 باب کی 10 سے 12 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جہاں گمراہی ہوگی تو خدا نے کیا کہا، میں کیا کروں گا، وہاں وبا کو بھیجوں گا۔ کیا کروں گا؟ جہاں گمراہی ہوگی، لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ بدعتوں کا شکار ہوں گے۔ گمراہی کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی اقسام ہیں۔ یرمیہ 14:10 سے 12 آیت نوٹ کر لیجئے گا۔ جہاں خدا کا کلام سنایا نہیں جائے گا، کہاں، اگلا پوائنٹ ہے، جہاں خدا کا کلام وہاں وبائیں آئیں گی۔ جہاں خدا کا کلام سنانے نہیں دیا جائے گا، جہاں خدا کا کلام
वहाँ वबाएं आएंगी, उस मुल्क में वबाएं आएंगी और मुख्तलिफ किस्म की वबाएं जो हैं वो यर्मिया 34:16 ये हवाला नोट कर लें। जहाँ खुदा का कलाम सुनाया नहीं जाएगा वहाँ वबाएं आएंगी। यर्मिया 34:16 नोट कर लीजिएगा, 34:16। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, जहाँ खुदा पर तवक्कल नहीं किया जाएगा, क्या कह रहा हूं, क्या होगा वहां वबाएं जो है, वबा जो है उस मुल्क को बर्बाद करेगी। और याद रखिए वबा जो है वो कई तौर पर होती है। वबा से मुराद बीमारी नहीं होती, वबा जो है वो दहशतगर्दी की सूरत में भी है, वबा तलवार से भी है। क्या है? एक ही वक्त में लोगों का मरना, वो तलवार। खुदा ने कहा मैं कौन सी वबा, तलवार की वबा भेजूंगा। कौन सी वबा? तलवार की वबा। ये याद रखिए, ये मुख्तलिफ जो हैं वबाएं जो हैं वो खुदा ने इसको मेंशन किया अपने कलाम के अंदर, बताया कि वबा जो है वो किसी तौर पे भी हो सकती है जहाँ खुदा पर तवक्कल नहीं किया जाएगा। यर्मिया 44:13 के अंदर ने खुदा ने मना किया था। यर्मिया के ज़माने में हमने जुमेरात वाले दिन भी इस बात पर गुफ्तगू कलाम के दौरान बात की कि खुदा ने बताया था यर्मिया को, जब क्योंकि यर्मिया की खिदमत का कुछ हिस्सा जो है वो सीरी में और कुछ पहले, सीरी से पहले और सीरी के बाद की खिदमत की। गालबन 40 साल यर्मिया की खिदमत थी। कितने साल? कुछ हिस्सा सीरी से पहले था, कुछ सीरी के बाद था। पहले भी खुदा के कलाम को ना माना गया, बाद में ना माना गया। खुदा ने यर्मिया को कहा लोगों को क्या कि इस मुल्क में रहें, इसकी सलामती चाहें, लेकिन उन्होंने फिर मिस्र के साथ अपने इत्तेहाद किए और फिर नबूकदनेस्सर के खिलाफ जब निकले तो फिर खुदा सख्ती के साथ फिर खुदा ने वबा का भेजा। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, जब हम मकरूहात और नफरती काम होंगे वहां खुदा वबा भेजेगा। क्या होगा? इसको घर में जाके जरूर हवाला जात को पढ़िएगा, आप एक नई सोच में जाएंगे। एक लंबी टीचिंग है, एक बड़ी ओके। जहां मकरूहात और नफरती काम किए जाएंगे, जहां मकरूहात और नफरती काम किए जाएंगे, खुदा क्या करेगा? वबा को भेजेगा। कहां भेजेगा? मकरूहात से मीनिंग्स, मकरूहात के बारे में खुदा ने, मकरूहात के अंदर ये मैं आपको बताऊं, बड़ी लंबी डिटेल है। मकरूहात के अंदर अगर मर्द औरत का लिबास पहने, औरत मर्द का, ये भी मकरूहात है। मकरूहात के अंदर तवीज पहनना, हाथ दिखाना, बहुत सी किसकी किस्म है। एक एक देखिए, ये अलग टॉपिक है अपने अंदर, लेकिन मैं वबा के बारे में एक तफसीली स्टडी जो है वो दे रहा हूं, तो ताकि, लेकिन मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं, मैं एक अगले हिस्से पे आपको लेके आना चाहता हूं। इन वबाओं में ईमानदारों ने क्या करना है, ये भी मैं अगला पॉइंट अभी छेड़ूंगा। जब मुल्क में वबाएं आएंगी, दुनिया में वबाएं आएंगी, तो बाहसियत ईमानदार हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास फासिल तदाबीर कौन सी होंगी। ये मैं इस पर थोड़ी देर रुकूंगा, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो खास हिस्सा जो है ना बना रह जाए, इस वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ। जहां मकरूहात और नफरती काम किए जाएंगे, हिस्कियल 5:11 से बड़ा नोट कर लीजिएगा। हिस्कियल की किताब, हिस्कियल नबी का सहीफा 5वें बाब की 11 से बड़ा है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, जहां गुनोने काम किए जाएंगे, क्या होंगे? जहां गंदे काम किए जाएंगे वहां क्या करेगा? खुदा वबा भेजेगा। और फिर इस पॉइंट पे मैं रुकना चाहता हूं, जहां इबादतों में गुनाह होगा वहां वबा आएगी। क्या होगा? जहां इबादतों में क्या होगा? गुनाह होगा, वहां वबाएं आएंगी। इसको जरा पढ़ लीजिएगा, ये वैसे तो बड़ी अहम बात है। अमूस की किताब निकालें, 4 बाब की 4 आयत से जरा इसको पढ़ सकते हैं। 10वीं आयत तक बड़ी खास चीजें हैं इसके अंदर। अमूस 4 बाब की, अमूस की किताब, उसका 4 बाब, और जब हम उसकी 4 आयत से अगर आप इसको पढ़ेंगे, अगर इसको मिल जाता है तो आप ज़रूर खुदा के कलाम में से रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम बातें हैं खुदा के कलाम में से। 4 बाब की बैतेल में आओ और गुनाह करो। खुदा क्या कहता है? बैतेल में आओ और, तो जिनके पास बाइबल है ध्यान दीजिए, बैतेल में आओ और। अब बैतेल कौन सा मकाम है? मैंने बताया था लास्ट टाइम में, याद है आपको?
बैतेल, रू का दूना हिस्सा, मसा के बारे में मैंने बताया था, लिशा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया था, ज़रूर यूट्यूब पे भी है, ज़रूर सुन लीजिएगा उसको। बैतेल मज़लों का मकाम, कौन सा मकाम है? मज़लों का मकाम। जहाँ मज़बे थे, क्या कलाम कहता है? बैतेल में आओ और गुनाह करो, खुदा कहता है मज़लों के पास आओ और आगे, और जिलजाल में कसरत से गुनाह अच्छा करो। इसके बारे में भी हमने सीखा था, याद है आपको? इसके बारे में भी सीखा था। ये कौन सा मकाम है? आओ क्या करो? गुनाह कसरत से। आप अगला हिस्सा पढ़िए। हर सुबह अपनी कुर्बानियां और हर तीसरे रोज दया खिलाओ, और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानो, और रजा की कुर्बानी का ऐलान करो, और उसको मशहूर करो, क्योंकि उसको क्या करो? इस्राएल मशहूर करो। यानी खुदा को देने के बाद क्या करो? खुदा ने कहा लाओ और मशहूर करो, आओ कुर्बानियां लाओ, सब कुछ लाओ। क्यों खुदा ये कह रहा था? क्योंकि खुदा तंग आ गया था ऐसे हालात की वजह से कि जहां इबादतों में आंखें इधर उधर घुमाने वाला काम ये खुदा को पसंद नहीं था, इसके खिलाफ था। खुदा ने देखा कि मेरी मुकद्दस जगहों का तकद्दुस कौम में नहीं रहा, और वो जगह जो पाक थी, जो इबादत गाह के लिए मुकर्रर थी, वो किसी और कामों के लिए जब यूज होना शुरू हुई तो खुदा ने कहा आओ गुनाह करो। फिर बड़ी वजाहत के साथ खुदा ने बताया, लंबी डिटेल है इसके अंदर, मशहूर करो आगे। क्यों है बनी इसराइल? क्योंकि ए बनी इसराइल ये सब काम तुमको पसंद है। खुदा ने क्या कहा? क्यों कहता तुमको ये पसंद है, करो ये काम। क्या है? सब तुमको पसंद है। खुदा आगे पढ़िएगा। खुदावन फरमाता है अगरचे मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी। क्या दी मैंने? रोटी की कमी दी। आगे तो भी तुम मेरी तरफ रजू न लाए। आगे अगरचे मैंने मी को जब के फसल पकने में 3 महीने बाकी थे तुमसे रोक लिया। मैंने फसल जब पकने वाली थी क्या कर लिया? मी को रोक लिया। और आगे और एक शहर पर बरसाया और दूसरे से रोक रखा। आगे एक किला जमीन में बरसाया, एक किला जमीन पर बरसा और दूसरा किला बारिश ना होने के बायस सूख गया। जहां जरूरत थी वहां नहीं पड़ी और जहां जरूरत नहीं थी वहां लोग डूब रहे थे। आगे 3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आई, हिजरत कर गए। आगे ताकि लोग पानी पिए पर वो असूदा ना हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। खुदावंद फरमाता है फिर मैंने तुम पर बादे सयूम और गिरोह की आफत भेजी। कौन सी आफत? बादे सूम और आफत यानी वबा भेजी, और तुम्हारे बेशुमार बाग और पाकिस्तान और अंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए। कौन से खा लिए? अभी एक अलर्ट बड़ा दुनिया में जारी हुआ। अभी आप अगर देखें तो दुनिया में एक बड़ा टिड्डी दिल जो है दुनिया पर फसलों पर इतना, और कहा जा रहा है आने वाले दिनों में फसलों का बड़ा कहत आने वाला है, क्योंकि टिड्डी दिल जो है अभी पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे इलाके हैं और टिड्डियों ने क्या किया? उन पर हमला किया है। अभी आप देखें न्यूज़ के अंदर ही देख लें, हालात हाजरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें हो रही हैं, रुलमा हो रही हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है कि जब इबादत गुजार मुकद्दसीन जो है वो खुदा के तकद्दुस को भूल जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी सो नहीं करेंगे। फिर अगली लंबी डिटेल है, खुदा ने वबाओं के बारे में कहा। अब खुदा का कलाम हमें आगाह करता है कि हम देखते हैं अहदे अतीक में हमने पढ़ा कि खुदा ने चंद वबाएं मैंने पहले बयान की, फिर मैंने वजह बयान की कि खुदा वबाएं क्यों भेजता है। अब ये लंबी डिटेल है, अगर विजन कर सकते हैं हम, अगर आप करना चाहें। नाफरमानी के सबब से पहले मैंने क्या बताया? बोलो बोले किसके सबब से? दूसरा अहद शक्नी बोलिए, क्या मैंने बताया? तीसरा जहां खुदा के कलाम पर अमल, जहां बर्दश्तगी होगी, जहां गुमराही होगी, जहां खुदा का कलाम सुनाया
جہاں روکا جائے گا خدا کا کلام سنانے سے، جہاں خدا پر توکل نہ کیا جائے گا، جہاں مکروہات اور نفرتی کام کیے جائیں گے، جہاں گنونے کام، جہاں عبادتوں میں گناہ ہوگا، اور وہاں پر خدا کیا کرے گا؟ وبائیں بھیجے گا۔ کیا کرے گا؟ اب یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے وبائیں دنیا میں ابھی اور بڑی آنے والی ہیں۔ کیا آنے والی ہیں؟ ابھی دنیا کے اندر، کیونکہ ہم نے ابھی پچھلے مہینوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے ہمارا اسلام آباد جو ہے وہ ایک ڈینگی کی وبا کی زد کے اندر تھا، اور تقریباً جب میں ہاسپٹلز میں دعا کے لیے جاتے تھے تو ایک بندے کے جاتے تھے 100 سال وہ تھے لا بیان دے سنا 100 جاننے والے مل جاتے تھے۔ میں کہا تسی بھی تھے ہی ہو۔ تو دیکھیں پنجاب ہم پھر سندھ کے اندر ہم دیکھیں وباؤں نے، دیکھیں یہ حالات حاضرہ کے اوپر میں بات آج کر رہا ہوں خدا کے کلام میں سے۔ سندھ کے اندر پچھلے دنوں بہت زیادہ بچوں کی ڈیتھس ہوئی، سندھ کے اندر ایک حیران کن وبا پھیلی۔ اسی طرح دیکھیں اب خدا کا کلام آنے والے بارے میں بیان کرتا ہے، خدا کے کلام میں پیش گوئیاں ہیں کہ یسوع اب 2 طرح کی وبائیں دنیا پر آئیں گی۔ یاد رکھ لیں کتنی طرح کی؟ ایک یسوع کی آمد سے پہلے آئیں گی اور ایک کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئیں گی۔ ذرا اس کو بھی نوٹ کر لیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ پوائنٹ والی بات ہے، ایک یسوع کی آمد سے پہلے آئیں گی اور دوسری کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ریپچر کے بعد آئیں گی۔ ذرا دونوں دیکھ لیں حوالے، لوکا 21 باب کی 11 آیت ذرا نوٹ کر لیں، پڑھ لیں ذرا اس کو، لوکا 21:11 پڑھ لیں، لوکا کے مطابق انجیلی بیان 21 باب کی 11 آیت ذرا پڑھ لیں۔ اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے آگے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ اب وبا کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ مڑی پڑے گی۔ کیا پڑے گی؟ مری پڑے گی۔ یہ وبا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر مکاشفہ اس کے 6 باب کی یسوع مسیح سے پہلے یسوع نے پیش گوئی کی کہ بچال آئیں گے، وبائیں آئیں گی، مڑی پڑے گی، یعنی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو وباؤں کی صورت اختیار کرے گی۔ مکاشفہ 6 باب کی 7-8 آیت کو پڑھ لیجئے۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا، جب چوتھی مہر کھولی گئی اور میں نے کیا کیا؟ ایک چوتھے جاندار کو آگے پڑھیے گا۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، ایک زرد سا گھوڑا ہے، آگے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے۔ اس کے سوار کا کیا نام ہے؟ موت ہے۔ کیا ہے اس کے سوار کا نام؟ موت۔ آگے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ کیا کرے؟ تلوار، کال، وبا اور زمین سے درندوں سے کیا کرے؟ لوگوں کو۔ کیا سین ہوگا جب دنیا کے خونخوار جانور جب بستیوں میں گھسے ہوں گے ہیں؟ وبا اس کا نام موت ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر وبائیں آئیں گی، اور اس قدر دنیا کے حالات بدلنے والے ہیں کہ لوگ اپنی دادوں میں زبان دیں گے۔ ذرا پڑھ لیں کبھی بائبل مقدس کو، اور اس طریقے سے دیں گے کہ حیران کن طریقے کے ساتھ خود دیں گے، اس قدر دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں ہم نے کتاب مقدس میں وجوہات پڑھی، ہم نے وباؤں کے چند وباؤں کے بارے میں پڑھا۔ اب میں جس عنوان کے جس خاص حصے پر میں رکنا چاہتا ہوں، باحثیت ایماندار ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باحثیت ہمیں دنیا کے اندر جب کوئی بھی وبا آتی ہے تو اس کی حفاظتی تدابیر بیان کی جاتی ہیں۔ کیا کی جاتی ہیں؟ اب دیکھیں جب ڈینگی آتی ہے تو بڑی بڑی دیواروں کے اوپر لکھا جاتا ہے آپ نے پورے کپڑے پہننے ہیں، ایک وطن پورا ایک میپ دیا جاتا ہے ہاسپٹلس کے اندر بچوں کی جب وبائیں پھیلتی ہیں۔ اچھا اب کئی دفعہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ آج کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے پاس حفاظتی تدابیر کون سی ہیں، یہ اس کو ذرا اینڈ سمجھ لیے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم خود کو دیکھیں دنیا بے یقینی کی حالت میں ہے، دنیا خوف کی حالت میں ہے، دنیا ایک عجیب سے دہشت کے اندر ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں جو مقدسین ہیں، میں 2 باتیں آج کرنے لگوں اس حصے کے اندر۔ باحثیت ایماندار ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے ان حالات کے اندر جب دنیا دہشت اور خوف کے اندر وباؤں کی وجہ سے مر رہی ہے، تو ہم اس وقت کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے
जब हम बाहसियत ईमानदार हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? हमें डरना नहीं है, बोलिए, हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमारे अंदर उम्मीद होनी चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। हमें खबर मिले उस वबा से वहां इतने लोग मर गए, अभी सही रात सोचते रह जाइए, नहीं। हमारा दिल जो है क्या कहते हैं, रब साडा जोर है ते नाले साडी, क्या कहते हैं, पावे जेकर हर भी आवे नाले पानी, करने शोर, आगे क्या है, खौफ ना करिए, खौफ ना करी, हमें छट जाने जमीन क्या है, क्या खौफ, हमें खौफ नहीं खाना। हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खौफ नहीं खाना, बल्कि हमने ज़बूर कानवे में हमें क्या पढ़ा है, ज़बूर कानवे जरा फिर निकालें, जरा 91 निकालें। सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, ज़बूर कानवे के अंदर क्या लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है, हमें हक ताला के पर्दा के नीचे आना है। पहली बात, हमें हक ताला के पर्दा, हक ताला के कलाम में क्या लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। क्या करेगा? वो कादर मुतलक के साया, कौन करेगा? जो हक ताला के। क्या अंडरस्टैंडिंग है, छोटी छोटी है। ज़बूर 84 में क्या गाते हैं, टेढ़न ते चिड़िया ने आल ना पाया, बनाई होना वोटां दे रहन दी जा। कितने कितने परिंदे हैं ये, चिड़िया टेढ़न, कितने कितने परिंदे हैं? चिड़िया हाथ से फाड़ लो नजर नहीं आएगी, पर इतनी छोटी है, पर सेंस उसको जरूर है। 6 फुट के बंदे नहीं पता जट गिर जाए। टेढ़न ते चिड़िया ने बनाई होना, वोटां दे रहन दी जा। और किताब मुकद्दस में वहां बड़ी बात लिखी है, लिखा है वो सदा तेरी तारीफ करेंगे जो तेरे मजहबों के पास रहेंगे। क्या फीलिंग्स थी इस बात को, पता नहीं लोगों ने क्या ले लिया, तेरे घर में एक दिन गुजारना, इन्हों पता नहीं लोगों की बाइबल दिया निकलना है। अहमियत बताई गई। हमें सबसे पहली बात, हमें खुदा के वादे का क्या करना है, यकीन करना है, खौफ नहीं खाना, ईमान में महफूज होना है। हमारा ईमान क्या है कि हमें हक ताला के पर्दा में रहना है और कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करना, लोगों को बताना है वही मेरी पनाह और मेरा घर है। आमीन। खुदा क्या है, मेरी पनाह और मेरा, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा। दुनिया को बताना है कि हम खौफ के अंदर नहीं है, हमारा तवक्कल किस पर है, अपने खुदा पर है। आमीन। और जब खुदा पर तवक्कल होगा तो कलाम क्या कहता है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। क्या करेगा? तुझे मोहलक वबा और सियात के, वो तुझे अपने बड़ों से छुपा लेगा। आमीन। क्या करेगा? वो तुझे अपने बड़ों से, तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, लेकिन खुदा का फजल तुझ पर होगा, तू कायम रहेगा। आमीन। तू ब्लेस रहेगा, तू महफूज रहेगा, क्योंकि तेरा तवक्कुल तेरे खुदा पर है, तेरा भरोसा तेरे खुदा पर है, तेरा यकीन तेरे खुदा पर है, तेरा ईमान तेरे खुदा पर है। और जो तू हक ताला के पर्दा में है, तू कादर मुतलिक के साया में है। आमीन। पहली पॉइंट हमें जिस बात पर जोर देना है, हमें क्या खूबसूरत है, मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। आमीन। जब हम पनाह के लिए उसके पास आ जाएंगे, और फिर याद रखिए सब तूफान गुजर जाएंगे, हम कायम रह जाएंगे। कलाम में लिखा, खुदा उन पर तवक्कल करने वालों को जुम्बश ना होगी। आमीन। पहला काम हमें क्या करना है, जब दुनिया के अंदर वो बाएं हों, हमें अपने खुदा कादर मुतलिक के साया के पास आना, उसके साया में छुप जाना। दूसरी बात हमें याद रखिए, खरूज की किताब 12वें बाब की 13 आयत जरा निकालें।
बहसियत ईमानदार हम जब वबाओं हों, दुनिया के अंदर मौत हो, दहशत हो, दुनिया बेयकीनी की हालत के अंदर हो, फिर खुदा के लोगों पर लाजम है कि वो पहले खुदा की पनाह के अंदर आए। दूसरा काम, खुरूज की किताब 12वें बाब की 13 आए, जरा 12 की 13, खुरूज 12 की 13 निकालें। जी जी बड़े बड़े जी जी पढ़ लें। और जिन घरों में तुम 12 और की जिन 13। घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान जिन ठहरेगा। घरों में तुम हो वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। क्या करेगा? निशान ठहरेगा। आगे, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। आगे, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं। तो जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकने को भी नहीं। आगे, कि तुमको हलाक करे। कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। अब खुदा ने कहा कि मैं वबा भेजूंगा। क्या करूंगा? और उनको बताया गया कि वबा तुम्हारे पास क्या नहीं होगी। क्या कलाम में लिखा है? क्या लिखा है? आपने भी सुना नहीं है? क्या लिखा है यहाँ पर? हमारे पास भटकने की भी नहीं, वबा तुम्हारे पास। भटकने की भी नहीं। खुदा ने अब देखे, अब ये वबा कौन सी वबा थी? खुदा ने क्या कहा था? मिस्र के तमाम पेलोठे मर जाएंगे। क्या होंगे? मिस्र के तमाम पेलोठे मर जाएंगे। मिस्र के तमाम पेलोठे। अब उनको बताया गया, कौम को बताया गया कि तुम्हारे लिए वो खून जो भर्रे का खून होगा, फसा का भर्रा लेना और उसका खून क्या करना? अपनी चौखटों और दरवाजों पर लगा देना। क्या करना? फसा के भर्रे का खून क्या करना? चौखटों और दीवारों पर लगा। और जिस घर पर, जिस चौखट पर भर्रे का खून लगा होगा, वो बा वहां पर भटकने की भी नहीं। भटकने की भी नहीं, उसके पास से भी नहीं गुजरेगी। और याद रखिए, अब खुदा ने जब रात को वबा को भेजा और मिस्र के अंदर महल से लेकर एक आम मलाजम के बच्चे, जानवरों के पेलोठे जो हैं, हर जानवरों से लेकर इंसान तक इस वबा के सबब से रो रहे थे, लोग चला रहे थे, मातम था, आंसू थे, सिसकियां थी। पर याद रखिए, जिन चौखटों दरवाजों पर फसा के बड़े का खून लगा हुआ था, वो बाप की जरूरत नहीं कि उसके पास से गुजर जाती। याद रखिए, अगर जानवरों के खून से वबाएं दरवाजों को छोड़ जाती है तो खुदा का बड़ा यीशु मसीह कलमाए मुजस्सम खुदरत वाला यीशु, उसका खून जहां लग जाएगा, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, दुनिया की कोई आवाज जो है वो आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि यीशु का लहू कुदरत वाला है। हालेलुया। ये फसा वाला लहू है। आमीन। अगर 60 हवा वाले जानवरों, बैलों के, भैंसों के खून से वफा जो है उस घरों के पास से गुजर सकती है, तो याद रखिए, यीशु का खून इस कदर कुदरत वाला है, कोई वबा छू नहीं सकती। हालेलुया। दूसरा काम क्या करना है? यीशु के खून में छुपना है। आमीन। क्या करना है? यीशु के खून में। बोलिए, यीशु के, अपने घरानों को, अपनी जिंदगियों को यीशु के खून में छुपाना है। और जो जिंदगियां, याद रखिए, ये खून बड़ा खास खून है। ये हर बंदा इस खून, ये छुपना हर बंदे का काम नहीं है। ये पाक खून है। कौन सा खून है? पाक खून। ये पाक खून है। और ये खून हमेशा वही इस खून में छुपेंगे जो पाकीज़गी को कायम रखेंगे। आमीन। आमीन। इस खून में छुपना है। पहला काम हमें हक ताला के पर्दा में आना। दूसरी बात हमें क्या करना है? बर्रे के खून में छुपना है। जब हम बर्रे के खून में छुपेंगे, और फिर याद रखिए, जब खुदा हमें छुड़ाता है वबाओं से, क्या करता है? वबाओं से। दुनिया वबाओं के अंदर होगी, दुनिया परेशानी के आलम में होगी, दुनिया आने वाले वक्त में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलाम का फैसला है, यीशु आने वाला है, तो दुनिया जो है, आप बड़ी बड़ी अजीब खबरें दुनिया में सुनने वाले हैं, बड़ी बड़ी हैरानकुन खबरें सुनने वाले हैं।
बड़ी बड़ी बीमारियां मंजर आम पर आने वाली हैं, मुल्क शहर कस्बे इसकी ज़ात में आने वाले हैं, पर खुदा के लोगों हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जब रहेंगे तो याद रखिए ये वबाएं कभी हमारी जिंदगी और हमारे घरानों को मुतासर नहीं कर पाएंगे। आमीन। आमीन। कभी हमारे पास भटकने की नहीं है, खुदा हमें महफूज करेगा। आमीन। जब हम महफूज हो जाएं, जब हम दुनिया मौत के आलम में, दुनिया आंसुओं के आलम में, दुनिया सृष्टियों के आलम में हो, जब हम महफूज हो जाएं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आमीन। क्या करनी है? दूसरी बात, हमें फिर दुनिया के लिए शिफायत करनी है। असी खुदा से ऐसे तो बचाता है, उन्हें पता है ए बीमार पै गए तो दुनिया से शिफायत कौन करेगा? वो इसलिए हमें बचाता है, इसलिए हमें सेव करता है ताकि हमारे हाथ उठे दुनिया के लिए। आमीन। हमारे हाथ उठे मुल्कों के लिए, शहरों के लिए हमारे हाथ उठे। हमारे हाथ जो है वो दुनिया के लिए, शिफायत के लिए उठे। लोग मर रहे हैं, और याद रखिए वबाएं जो है खुदा हमें दुआ करने की जरूरत है। मैं आपको एक वाकया याद होगा, पौलुस रसूल जो है रसूलों के माल के अंदर मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा, अरबंतीने की कलीसिया है जहाँ पर पौलुस रसूल जब उस इलाका के अंदर गए तो वहां पर जब पौलुस शहर का विजिट कर रहे थे कि इससे पहले मुनादी करे, और जब वहां पर गए तो वहां पर लिखा नामालूम खुदा। क्या लिखा था? उसको एक ऐसी कुर्बानगाह, एक ऐसा मजबा नजर आया जिसके ऊपर क्या लिखा था? नामालूम खुदा। अब ये इन्होंने नामालूम खुदा क्यों डाल दिया बीच में? जब ये वबा आई उस मुल्क के अंदर, तारीख बताती है बहुत से लोग मर रहे थे वबा के सबब से, और लोगों ने अपने अपने देवताओं के सामने कुर्बानियां गुजारी, उनके सामने उन्होंने अपने हदिये गुजराने, माफी मांगी, तौबा की, पर वबा न रुकी। उन्होंने कहा हो सकता है कोई और हमसे नाराज हो। क्या हो? साढ़े देवताओं तो बड़ा कोई देवता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस शहर के लोगों ने एक ऐसी कुर्बानगाह बना दी जिसके ऊपर नामालूम लिखा। कहता है हमें नहीं पता कौन सा देवता है, पर हम तेरे सामने अपने आप को पेश करते हैं। और क्या हो गई? वो बात रुक गई। अब जब पौलुस वहां पर गया मुनादी के लिए तो पौलुस रसूल ने देखा कि उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं नामालूम कौन सा है। क्या तुमने जिसके सामने से कुर्बानियां करो, मैं उस खुदा का पैगाम आपके पास लेकर आया हूं। मेरा ईमान रखता हूं कि याद रखिए मुकस्सो जब हम दुआ करेंगे तो वो उस खुदा को जानेंगे। आमीन। जो वो पांव से बचाने की कुदरत रखता है और वो मुल्क खुदा के दिलार की गिरफ्त में आ सकता है। हो कैसे? जब शिफायत होगी। आमीन। खुदा मुकशफा देगा। इसलिए याद रखिए कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा के बंदा ने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया। पहला सलातीन 8वें बाब की 38 आयत के अंदर, पहला सलातीन 8:38 के अंदर, पहला सलातीन फर्स्ट किंग निकालिए, सलातीन और 8वें बाब की 38 आयत को आप बगौर पढ़ें तो यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र है। खुदा हमें इसलिए बचाता है, खुदा हमें इसलिए महफूज करता है। अगर आप उस 37 को पढ़ लें तो यहाँ पर और पैगाम वाज़िह हो जाएगा और ज्यादा। चले 36 आयत जरा पढ़ लें, 36 से पढ़ लें। चले 36 पढ़ ले। तू आसमान पर, तो तू आसमान पर से सुनकर अपने बंदों और अपनी कौम इस्राएल का गुनाह माफ कर। तू आसमान से सुनकर अपने बंदों और अपनी कौम इस्राएल का गुनाह माफ कर देना। आगे, क्योंकि तू उनको उस अच्छी राह की तालीम देता है जिस पर उनको चलना फर्ज है, और अपने मुल्क पर जिसे तूने अपनी कौम को मिराज के लिए दिया है मी बरसाना। अगर मुल्क में क्या हो? काल हो, रोटी का हो, आटे का हो, कोई भी काल हो। और आगे, अगर वबा हो, क्या हो? अगर मुल्क में काल और क्या हो तो हमें क्या करना है? मुकस्सो ईमानदारों हम पर क्या लाजुम है? अगर वबा हो, काल हो, क्या करना है? आगे, अगर बाद समूह या गुरुई या टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन। अब देखें बड़ी लंबी डेफिनेशन है, इन हालात से हम गुजर रहे हैं। अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर ले
अर्ज कैसी ही भला कैसा ही रोग हो, तो जो दुआ और मुनाजात किसी तू जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इस्राएल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने दिल का दुख जानकर, ये दर्द ही लेना मुश्किल काम है, ये सांस ही लेना मुश्किल काम है। सालों की ये दुनिया मार रही है ना, सालों की है। दिल दुख गाना जब फिर बात बनेगी, दिल दुखेगा जब, तकलीफ होगी अंदर, सांस बनेगा, वह सांस आपको शिफायत मुनाजात की तरफ ले जाएगा। इसलिए खुदा के बंदा ने क्या कही 38 आयत में, तू जो दुआ और मुनाजात, जरा बाइबल के पास जरा पढ़े क्या लिखा, तू जो दुआ मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इस्राएल की तरफ से, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने हाथ उस घर की तरफ फैलाए, तू आसमान पर से तेरी सुकूनत गाह है, सुनकर माफ कर देना और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसकी सारी रव्श के मुताबिक बदला देना, क्योंकि तू ही सब बनी आदम के दिलों को जानता है। अब खुदा का कलाम क्या बयान करता है, जब वबा हो काल हो तो खुदा के लोगों हमने हाथ उठाने और क्या करनी है, शिफायत। आमीन बोले, क्या करनी है? आज हमने क्या करना है? आज हमने स्पेशली चीन के लिए शिफायत करनी है थोड़े वक्त में। आमीन। हमें जब बहसियत ईमानदार हम पर लाज़िम बनता है, हम दुनिया के अंदर जब वबाएं बलाएं हों तो हमें खुद को महफूज करना है। फारसी तदाबीर बहुत सी हो सकती है मेडिकली, लेकिन हमें उन बातों पर नहीं, हमें खुदा के कलाम में, खुदा की हक ताला के पर्दा में आना है और यीशु के खून में छुपना है। और दुनिया के लिए हमने क्या करनी है, शिफायत। आए अपने हाथों को उठाइए और मैं चाहता हूँ थोड़े वक्त में आप लोगों के लिए अपने हाथों को उठाइए, खड़े हो जाइए अपने कदमों पर और दुआ करना शुरू कीजिए। सारे सब दुआ करना शुरू करें। याद रखिए हम मुल्क के अंदर इसीलिए आपकी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए कि ये बाप हम तेरे बेटे यीशु के नाम से वो बाप को रोकते हैं। बहसियत ईमानदार हमारी जिम्मेदारी है। आए अपने यीशु पर नजरें लगाइए, आए अपने यीशु पर गौर कीजिए, आए अपने यीशु पर नजर जुमा लीजिए। यीशु के नाम में आपके पास इख्तियार है, आप बाख्तियार लोग हैं। लिखा जब कलीसिया आसमान पर यीशु मसीह ने कहा था तुम जो जमीन पर बांधोगे वो बंधेगा, दुआ कीजिए खुदा तौबा की तौफीक दे, वो लोग जाने इस बात को समझे। ऊंची ऊंची बात में दुआ 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 शिफायत की जाते और हमारा शंदारा बाखा संबा लोगों को तौबा की तौफीक शिफायत कीजिए। तुमको छुड़ाने वाला खुदा है, तुमको रिहाई देने वाला खुदा है। भूख में काल हो तो कलीसिया का काम है दुआ करना। सरफराज करने वाला खुदा है। फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज कर पाते हैं। तो ऐ खुदा हम ये उन शहर के लिए, उन खुदा मुल्क इलाका के लिए खुदा